السلام علیکم ناظرین، خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ نوٹ برائے ووٹ اسکیم کو تلنگانہ بمقابلے آندھرا کا رنگ دے کر باہر نکلنے کی کوشش نامناسب، چندر بابو نائیڈو پر کے ٹی آر کی تنقید۔ ریونت ریڈی سے تیسرے دن بھی پوچھ تاچھ، درخواست ضمانت پر سماعت چہارشنبے تک ملتوی۔ ماہ رمضان کے دوران مہدی ڈیزائن سیکھنے والوں کے لیے کاؤنٹرز قائم کرنے کا اعلان، ملک پیٹ میں سالار کوچنگ سینٹر کا جلد سے تقسیم اسناد۔ میرچل میں سڑک حادثہ، ڈی سی ایم گاڑی کی ٹکر سے آٹو ڈرائیور ہلاک۔ اور حیدرآباد میں براؤن شوگر اور مین ڈرگز کی فروخت کا ریکٹ بے نقاب، جوبلی بس اسٹیشن سکندرآباد میں ایک شخص گرفتار۔ اور اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ نوٹ برائے ووٹ اسکیم کو چندر بابو نائیڈو تلنگانہ بمقابلے آندھرا پردیش کا رنگ دے کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو اسکیم میں ملوث پائے گئے ہیں اور ان کی پارٹی کا رکن اسمبلی رقم کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ ان کے ایک ٹیپ کے بھی منظر عام پر آنے سے متعلق سوال پر کے ٹی آر نے کہا کہ وہ اس معاملے میں تحقیقات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں اور چندر بابو نائیڈو کو بھی تحقیقات کے لیے آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سارے معاملے پر لائی ڈیٹیکٹیو ٹیسٹ کرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب کیا آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ بھی اس ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں؟ کے ٹی آر نے یہ بھی کہا کہ چندر بابو نائیڈو کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ ریونت ریڈی نے غلطی کی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکیم کو منظر عام پر لانے کے بعد آندھرا پردیش میں مقدمے درج کرتے ہوئے تیلگو دیشم حکومت نچلی سیاست کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ దేశ ప్రజల ముందు బయటపడ్డ విషయాన్ని కూడా మొత్తం దేశం చూసింది। ఇంత చేసి దొరికిపోయిన తర్వాత దొంగనే దొంగ దొంగ అన్నట్టు ఈరోజు సిగ్గు లేకుండా నీతిమాలిన దిగజారిన దిక్కుమాలిన రాజకీయాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసి ఇది ఆయన వ్యక్తిగతమైన అవినీతి చరిత్రను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి, ఆయన వ్యక్తిగత ప్రవర్తనను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి, ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రజల మధ్యన తగాదా పెట్టే ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నారో అత్యంత నీతిబాహ్యమైన, అత్యంత దిగజారుడు జుగుప్సాకరమైన రాజకీయానికి ఆయన తెరలేపినారని నేను చెప్తా ఉన్నాను। ఈరోజు వారి పార్టీలోనే ఇంతవరకు ఒక అభిప్రాయం అంటూ లేదు। 5 రోజులైంది వారి పార్టీ శాసనసభ ఉపనేత దొరికి అడ్డంగా। ఇంతవరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన చేసింది తప్పని కానీ ఒప్పని కానీ ఎందుకు చెప్పడం లేదు? తప్పైతే ఈ పార్టీకి రేవంత్ రెడ్డిని సస్పెండ్ చేసి ఉండాలి పార్టీ నుంచి, ఒప్పైతే నేనే చేయించిన అని చెప్పాలి। ఏది చేయకుండా ఇంకా కూడా సిగ్గుమాలిన రాజకీయాలు చేస్తా అంటే نوٹ برائے ووٹ معاملے کے ملزم رکن اسمبلی ریونت ریڈی سے تیسرے دن بھی اے سی بی کے عہدیداروں کی جانب سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ اس سے پہلے ہائی بلڈ پریشر کی شکایت پر ریونت ریڈی کو عثمانیہ دواخانہ لے جایا گیا، جہاں پر ان کا معائنہ کرایا گیا۔ بعد میں بنجارہ ہلز پر واقع اے سی بی کے دفتر میں ریونت ریڈی سے پوچھ تاچھ ہوئی۔ اس دوران یہ اطلاع ملی ہے کہ ریونت ریڈی کی درخواست ضمانت پر سماعت چہارشنبے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ریونت ریڈی کے وکیل نے بتایا کہ ان کے موکل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ اس دوران یہ اطلاع ملی ہے کہ محکمہ انسداد رشوت کے ڈائریکٹر اے کے خان کی قیادت میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں نوٹ برائے ووٹ اسکیم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پتہ چلا ہے کہ اے سی بی اس معاملے میں آندھرا کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو اور دیگر افراد کو نوٹس جاری کرنے پر بھی غور کر رہی ہے اور اس سلسلے میں قانونی ماہرین سے صلاح و مشورہ لیا جا رہا ہے۔ ریونت ریڈی کی تحویل میں توسیع کے سلسلے میں اے سی بی درخواست داخل کر سکتی ہے۔ کانگریس کے رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے چندر بابو نائیڈو اور اسٹیفن کے درمیان بات چیت کا آڈیو
अदालत में फौरी पेश करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू खुद को उसूल पसंद समझते हैं तो उन्हें फौरी इस्तीफा देकर तहकीकात का सामना करना चाहिए। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि किसी भी रियासत के वज़ीर आला का इस तरह के स्कैम में मुलव्विस होने का ये एक अनोखा वाक़या है और इसके सबूत भी अवाम के सामने आ चुके हैं। कांग्रेस रुकने कौंसिल ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू का ये रवैया जमहूरियत के मुंह पर धब्बा है। तेलंगाना कौंसिल में कायदे अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो गड्ढा चंद्रबाबू नायडू ने दूसरों के लिए खोदा था, आज वो खुद उसमें गिर गए। उन्होंने कहा कि 1995 में अपने खुसर की हुकूमत को बेदखल करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने अरकान असम्बली को वाइसराय होटल में महरूस रखा था, सूटकेस और ओहदों का लालच देकर इक़्तिदार पर कब्जा किया था। उस वक्त उनके साथ मौजूदा तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर भी शामिल थे। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि सूटकेस की सियासत का रियासत में चंद्रबाबू नायडू ने आगाज़ किया था, लेकिन आज वो खुद अपने बुने हुए जाल में फंस चुके हैं। कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि दोनों यानी चंद्रबाबू नायडू और चंद्रशेखर राव अपनी रियासतों के अवाम को धोखा दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले किए गए वादों को अमली जामा न पहनाने वाले दोनों वज़राए आला अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के ड्रामे किए जा रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वज़राए आला निचली सियासत का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर जहां तेलंगाना में कांग्रेस और तेलुगु देशम कायदीन को दबाव डालते हुए अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, वहीं चंद्रबाबू नायडू भी यही अमल आंध्रा में कर रहे हैं। टीआरएस के रुकन असेंबली गणेश गुप्ता ने कहा है कि रेवंत रेड्डी मामले के वीडियो और चंद्रबाबू नायडू के ऑडियो टेप के मंजर आम पर आने के बाद तेलुगु देशम कायदीन की ज़बानें बंद हो गई हैं। मीडिया से बात करते हुए गणेश गुप्ता ने कहा कि सियासी उसूलों की बात करने वाले चंद्रबाबू नायडू का असली चेहरा सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि ऑडियो टेप को फौरी फॉरेंसिक लैब भेजा जाए ताकि चंद्रबाबू नायडू की हकीकत से दोनों रियासतों के अवाम वाकिफ हो जाएं। उन्होंने कहा कि एल्विस स्टीफनसन ने जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए सियासी उसूलों की पासदारी का सबूत दिया है और बड़े रैकेट को बेनकाब किया है। तेलुगु देशम तेलंगाना के लीडर एम नरसिम्लू ने कहा है कि टीआरएस की धमकियों वाली सियासत का तेलंगाना के अवाम मुशाहिदा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए नरसिम्लू ने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर ने तेलुगु देशम कायदीन को धमकियां देकर और दबाव डालते हुए अपनी पार्टी में शामिल किया है। उनका कहना था कि तेलंगाना में केसीआर और उनके अफराद ख़ानदान ही त्यौहार मना रहे हैं, जबकि तेलंगाना अवाम इसमें शामिल नहीं है और न ही वो हुकूमत से खुश हैं चुकी है। इस मौके पर तेलुगु देशम के एक और लीडर पेद्दी रेड्डी ने सवाल किया कि आखिर ऑडियो टेप को किसने जारी किया और जिस दिन रेवंत रेड्डी का वाक़या पेश आया था उस दिन टेप को क्यों जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत तेलुगु देशम को तेलंगाना से ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी ये साजिश कामयाब नहीं होगी। पेद्दी रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी को फंसाया गया है। उनका यह भी कहना था कि ऑडियो टेप में मौजूद आवाज़ चंद्रबाबू नायडू की नहीं है। पेद्दी रेड्डी ने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ साजिश रची गई है। दूसरी जानिब कांग्रेस के रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने एक बार फिर रेवंत रेड्डी मामले की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। कांग्रेस रुकने राज्यसभा ने इस सिलसिले में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब भी रवाना किया है। मकतूब में उन्होंने वज़ीर आला से दरख्वास्त की है कि इस तरह की हरकतों का सख्त नोट लेते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। तेलंगाना के वजीर टी नागेश्वर राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि एक साला दौरे इख्तिदार में अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के उमूर में मुदाखलत की कोशिश की है। मीडिया से बात करते हुए नागेश्वर राव ने कहा कि एक रियासत में दो इलाकाई पार्टियों की गुंजाइश नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की किसी भी मुश्किल में तेलंगाना हुकूमत ने साथ दिया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने हमेशा तेलंगाना के खिलाफ साजिश की है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के रवैये पर उनके वज़रा को भी पशेमानी का सामना करना पड़ रहा है।
تلنگانہ کابینہ کا اجلاس چہارشنبے کو منعقد ہوگا۔ ذرائع کے مطابق جائیدادوں پر تقررات، کانٹریکٹ ملازمین کو باقاعدہ کرنے، ملازمتوں کے لیے امیدواروں کی حد عمر میں اضافے کے امور پر کابینہ میں تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ 2 کمروں والے مکانات کی فراہمی کے سلسلے میں رہنمایانہ خطوط وضع کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ تلنگانہ حکومت کی صنعتی پالیسی اور کسانوں کو دوسرے مرحلے کے تحت قرضوں کی معافی کے علاوہ خریف موسم کی حکمت عملی کے سلسلے میں بھی کابینہ کے اجلاس میں غور کیا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر پدما دیویندر ریڈی نے سرکاری تعلیمی اداروں میں بہتر تعلیم کے لیے طلباء کو ذمہ داری سے خدمات انجام دینے کا مشورہ دیا ہے۔ رویندر بھارتی میں اساتذہ کی تہنیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پدما دیویندر ریڈی نے کہا کہ وہ خود بھی سرکاری اسکول کی طالبہ رہی ہیں، لیکن کارپوریٹ اسکولز کے موجودہ مسابقتی دور میں سرکاری اسکولز کے اساتذہ کو ذمہ داری کے ساتھ خدمات انجام دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے سرکاری اسکولز کے لیے ممکنہ سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طلباء کی تعلیم پر توجہ دیں تاکہ سرکاری اسکولز کے معیار میں بہتری آ سکے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پیر کو ضلع نلگنڈا کے دامر چلہ میں یاداداری پاور پلانٹ کی سنگ بنیاد تقریب کے موقع پر بھومی پوجا میں حصہ لیا۔ بعد میں وزیر اعلیٰ نے یادگار کی نقاب کشائی انجام دی۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ نے ضلع نلگنڈا کے چوٹ اپل میں واٹر گریڈ پروجیکٹ کی یادگار کی رونمائی بھی انجام دی۔ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے بلدی حلقہ فتح دروازہ کے مختلف محلجات کا دورہ کیا۔ بلدی، برقی اور آب رسانی محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ انہوں نے فتح دروازے کے علاوہ ملڑ کی تعلیم کمان محمد شکور کا پیدل دورہ کرتے ہوئے پانی کی قلت اور آلودگی کی شکایات کا جائزہ لیا۔ مقامی افراد نے صفائی کے کاموں کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس کی ناقص کارکردگی کی بھی شکایت کی۔ انہوں نے اپنی موجودگی میں آلودگی دور کرنے کے لیے کاموں کا آغاز کروایا اور دیگر کاموں کو بھی جلد کروانے کا تیقن دیا۔ اور کچھ گندے کے کچرے کی صفائی کی بھی تھی۔ سینیٹری سپروائزر ساتھ تھے، ان کو بتایا گیا، انہوں بھی وعدہ کیے کہ پابندی سے کم از کم 1 دن تو بھی یہاں پہ جھاڑو ہونا، کچرا اٹھنا یہاں پہ۔ کچھ ڈبریز کی شکایت تھی، ڈبریز اٹھانے کے تعلق سے بھی بتا دیا گیا ہے۔ مین مسئلہ یہاں کا پانی کا تھا، میلا پانی آ رہا ہے بول کے لائن کو کٹ کر دیے اور کٹ کر کے 1 مہینے کے اوپر ہوا۔ پانی کی بہت تکلیف ہے لوگوں کو۔ وہ پانی صاف ہونے کے بعد 2-4 دن میں صاف ہو جائیں گے اور کریکشن دیں گے، پانی کا مسئلہ حل ہو جائیں گے۔ باقی جو مسائل ہیں وہ کچھ پیچ ورک ہے، کچھ صفائی کا انتظام ہے، کچھ اسٹریٹ لائٹ کے کمپلین ہے، وہ نوٹ کرا دیا گیا۔ انشاءاللہ وہ بھی جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ مسائل کو رمضان سے پہلے حل کر کے یہاں کے لوگوں کو سہولت پہنچانے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ بلدی برقی آب رسانی کے تمام عہدیدار ہمارے ساتھ تھے، ابتدائی مجلس کے بھی ہمارے ساتھی یہاں پہ ساتھ تھے دورے میں۔ مجھے توقع ہے کہ آفیسر یہ باتوں کو نوٹ کر کے جلد سے جلد یہاں کے مسائل کو حل کریں گے۔ شکریہ۔ وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے ایرم منزل راما کرشنا نگر میں مستحق اور غریب افراد میں پٹے تقسیم کیے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ ماضی میں کسی حکومت نے غریبوں کے لیے اس طرح کے اقدامات نہیں کیے تھے جس طرح آج TRS حکومت کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر میں 1 لاکھ مکانات کی فراہمی حکومت کا مقصد ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ غریبوں کے مسیحا ہیں اور غریب افراد کو ممکنہ سہولتیں پہنچانے کے لیے تلنگانہ حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ اس موقع پر BJP کے رکن اسمبلی C رام چندر ریڈی بھی موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں مجلس اتحاد مسلمین کی جانب سے گرمائی تعطیلات کے دوران منعقد کیے گئے سالار کوچنگ سینٹر کے 3 مراکز کا جلد سے تقسیم اسناد عمل میں آیا۔ اس کے علاوہ متعلقہ رکن اسمبلی احمد بلالہ کے ہاتھوں سلائی مشین بھی تقسیم کی گئیں۔ سلیم نگر اور مسرام باغ کے کوچنگ سینٹرز کی 13 تربیت یافتہ خواتین کو سلائی مشینیں حوالے کی گئیں تاکہ وہ گھر بیٹھے باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ رکن اسمبلی کے ہاتھوں سالار سمر کوچنگ سینٹر کے 3 مراکز واقع مسرام باغ، سلیم نگر اور ملک پیٹ قدیم کے 350 خواتین کو
असनाद और इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि सैकड़ों खवातीन ने मजलिस की स्कीम से इस्तिफादा किया है और मुख्तलिफ फ़नून और हुनर से वाकफियत हासिल की है और उनके इस असनादात को सेटविन से भी मजलिस ने इल्हाक़ करवाया है ताकि किसी भी इदारे में मुलाजमत में आसानी हो सके। उन्होंने कहा कि मेहंदी डिज़ाइनिंग सीखने वालों के लिए माह रमज़ान के दौरान चंचलगढ़ जूनियर कॉलेज के अहाते में काउंटर्स कायम किए जाएंगे ताकि उन्हें मुनासिब रोज़गार हासिल हो सके। इस मौके पर मकामी मजलिसी ज़िम्मेदारों के अलावा मुंतज़मीन मौजूद थे। इर्रम मंजिल रामाकृष्णा नगर में पट्टों की तकसीम के दौरान टीआरएस की लीडर विजया रेड्डी और मकामी रुकन असम्बली सी रामचंद्र रेड्डी के दरमियान बहस व तकरार हो गई। दोनों को समझाने के लिए तकरीब में मौजूद वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी को मुदाखलत करनी पड़ी। ज़राए के मुताबिक पट्टों की तकसीम की फहरिस्त में नामों के शमूलियत के मौजू पर विजया रेड्डी और रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी के दरमियान बहस व तकरार हुई। बाद में वज़ीर दाखिला ने मुदाखलत करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया। मशहूर तेलुगु अदीब और मुजाहिद आज़ादी डॉक्टर विशार्थी रंगाचार्या चल बसे हैं। वो 86 साल के थे। रंगाचार्या गुज़िश्ता चंद अरसे से अलील थे और खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला ने रंगाचारी की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया। रियासती वज़रा और मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने रंगाचार्या के मकान पहुँच कर उनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। अफजल सागर और हबीब नगर के बाज़ इलाक़ों में पानी की सरबराही बंद कर देने के खिलाफ मकामी अफराद ने रेड हिल्स पर वाक़ वाटर वर्क्स के दफ्तर पर धरना दिया। एहतजाजियों ने मुतल्लिक़ा लाइनमैन के रवैये की जीएम से शिकायत की। जीएम ने खाती मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई करने और चंद घंटों में पानी की सरबराही का तयक़ुन दिया। मेरचल में डीसीएम गाड़ी की टक्कर से ऑटो ड्राइवर हलाक हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त 19 साला बाला नरसिम्हा साकिन मेदक की हैसियत से की गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर लाश को दवाखाना मुंतकिल किया। साउज़ोन टास्क फोर्स और सीसीएस की टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 1 किलो ब्राउन शुगर को जब्त कर लिया है। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स कोटी रेड्डी ने बताया कि करीमनगर के साकिन आर रामचंद्रम को जुबली बस स्टेशन सिकंदराबाद के पास 600 ग्राम ब्राउन शुगर और 400 ग्राम मैंड्रक्स के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पेशे से किसान रामचंद्र मध्य प्रदेश के शहर इंदौर गया था और वहां से सतपाल सिंह नामी मनशियात के स्मगलर से मज़कूरा ड्रग्स हासिल किए और हैदराबाद पहुंचकर वो उसे फ़रोख्त करने वाला था। पुलिस के मुताबिक रामचंद्र मोहन नामी शख्स को ये ड्रग्स फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस ने उसे ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जब्त शुदा ड्रग्स की कीमत 50 लाख रुपए के लगभग है। रामचंद्रम के साथी सत्यपाल सिंह और मोहन मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने इन दोनों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश इंदौर में रहने वाले सतपाल सिंह ड्रग सप्लायर से ये रामचंद्र में कंसाइनमेंट पे लेकर हैदराबाद में एक मोहन नेटिव ऑफ करीमनगर को बेचने की कोशिश में पुलिस को मिल गया। इस सीज्ड प्रॉपर्टी 1 kg ऑफ कॉन्ट्राबैंड ड्रग कंसिस्ट ऑफ 600 ग्राम्स ब्राउन शुगर 400 ग्राम्स मैंड्रैक्स। इंक्वायरी में मालूम पड़ा कि
ये ड्रग पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इंडिया को वया राजस्थान मध्य प्रदेश से मांगवा था, वहाँ से दूसरे शहरों को सप्लाई करवाता। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्रेंडेड एक्यूज्ड एंड सीज्ड प्रॉपर्टी CCS नारकोटिक सेल को हैंड ओवर कर दिया। आसिफ नगर पुलिस हदूद में तिलाई चेन और मंगलसूत्र छीन लेने की वारदात पेश आई है। ललिता नामी खातून अपने शौहर के हमराह बनेश्वर नगर इलाके से गुजर रही थी कि मोटरसाइकिल सवार दो रहजन सुबह 9 बजे के वक्त अपनी बाइक उनकी मोटरसाइकिल के करीब लाकर ललिता के गले से तिलाई चेन और मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए, जो तकरीबन 4 तोले के बताए गए। आसिफ नगर पुलिस इत्तला मिलने पर मकाम वाक़या पहुंची और तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इंस्पेक्टर ने मकामी दुकानदारों को CCTV कैमरे नस्ब करवाने की हिदायत दी ताकि इस किस्म के जराइम का पता चलाया जा सके। कुशाईगुड़े में दूसरी खातून के साथ रंगरलियां मनाने वाले शौहर को बीवी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पद्मावती नामी खातून अचानक अपने शौहर सतीश के ठिकाने पर पहुंच गई और जब उसे तमाचे रसीद करने शुरू किए तो शौहर ने भी पद्मावती को ज़द्दोकूब किया। शौहर और बीवी के दरमियान लड़ाई की चीखों पुकार पर पड़ोसियों की कसीर तादाद जमा हो गई। काफ़ी देर तक शौहर और बीवी के दरमियान बहस तकरार और गाली गलौज का सिलसिला भी जारी रहा। बाद में पद्मावती ने मकामी पुलिस स्टेशन में अपने शौहर सतीश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने उसे तहवील में ले लिया है। राजेंद्र नगर के हसन नगर इलाके में गैर कानूनी तरीके से अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करने वाली कंपनी पर SOT पुलिस ने धावा किया। पुलिस ने बताया कि इजाज़त के बगैर पेस्ट तैयार किया जा रहा था और उसे हीरा कंपनी के नाम से फ़रोख्त किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक हीरा कंपनी की शिकायत पर यह धावा किया गया। तकरीबन 10 लाख रुपए के सामान को जब्त कर लिया गया है। कंपनी का मालिक हमीद लापता बताया गया है। ज़िले नलगुंडा के एक तालाब से कमसिन लड़के की मस्ख शुदा लाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़्फ़िक़ 13 साला कुमार 17 मई को क्रिकेट खेलने के लिए घर से निकला था, वापस नहीं लौटा। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद साई कुमार की तलाश शुरू की थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नोट बराए वोट स्कैम को तेलंगाना बमुकाबले आंध्रा का रंग देकर बाहर निकलने की कोशिश नामुनासिब, चंद्रबाबू नायडू पर KTR की तनकीद। रेवंत रेड्डी से तीसरे दिन भी पूछताछ, दरखास्त जमानत पर समाअत चारशंबे तक मुलतवी। माह रमज़ान के दौरान मेहंदी डिज़ाइन सीखने वालों के लिए काउंटर्स कायम करने का ऐलान। मलकपेट में सालार कोचिंग सेंटर का जल्द से तक़सीम असनाद। मेरचल में सड़क हादसा, DCM गाड़ी की टक्कर से ऑटो ड्राइवर हलाक। और हैदराबाद में ब्राउन शुगर और मैन ड्रग्स की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, जुबली बस स्टेशन सिकंदराबाद में एक शख्स गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह।